गोविंद, मिस्टर इवनिंग गोविंद। सर। हाँ बेटा, गुड इवनिंग। हाउ आर यू? सर हम फाइन सर। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास? सर वही टॉपिक? कंटिन्यू सर हाँ, वही कंटिन्यू किया था सर। क्या कंटिन्यू किया था? वही सर क्या आपको था? कैमरा ऑन है क्या सर? मेरा कैमरा ऑन है बॉस। यस, क्यों, डाउट है कुछ? नहीं सर, सर मेरे को दिख ही नहीं रहे सर आप। एक बार ही रीजॉइन करता हूँ सर। अच्छा, मैं दिख नहीं रहा हूँ ऐसा कुछ? यस सर, आप मेरे को नहीं दिख रहे सर। अभी भी नहीं दिख रहा हूँ? सही है नो सर। बेटा। और किसी को दिख रहा हूँ कि नहीं कुछ? Now you're visible. आई एम सर विजिबल ना? केमिस्ट्री के अंदर भी सर यही सर दिक्कत हो रही थी सर, मेरे को बार बार सर मतलब एक मोमेंट के लिए स्क्रीनशॉट लेना पड़ता अभी था। जो तुमको बोला ऑफलाइन आओ, तुम्हें सब दिखेगा। यस सर। सर आज एक्चुअली सर घर में कुछ सर सामान आ रहा था सर, इस करके जा नहीं पाया। अच्छा, ऑफलाइन आओ, दिखेगा भी, सुनाई भी साफ साफ पड़ेगा सब। नो ऑडियो वीडियो प्रॉब्लम, दिमाग में भी ज्यादा जाएगा। ऐसा होता है यस ना? सर। यस सर। सर फ्राइडे को सर बहुत फर्क ऑनलाइन पड़ता है। ऑफलाइन ही आऊंगा सर। हाँ, वेरी गुड। क्या पढ़ा था मैं लास्ट क्लास? हाँ, सर्कुलर मोशन। मोशन है प्लेन में, लास्ट टॉपिक कर रहे थे हम, सर्कुलर मोशन। वी डिराइव द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्या था फॉर्मूला सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ईशान? देखना पड़ेगा पीछे। वी स्क्वायर बाय आर, राइट। V square by R is the formula for uniform centripetal acceleration, which is acceleration towards the center. What does centripetal acceleration do? क्या काम होता है centripetal acceleration का? ये डायरेक्शन चेंज करना, the direction of velocity vector. So when a particle is moving on a circle, if it is moving with a constant speed, then only one acceleration is required, that is to change the direction, और वो था centripetal acceleration. Centripetal acceleration का formula V square by R, or we can write it as R omega square also. Centripetal acceleration changes the direction. If it is a uniform circular motion, then we can always safely say the angle between velocity and acceleration is going to be 90 degree always. V into omega, एक ही बात है. V into omega is also one formula that we can use. Centripetal acceleration, is it a uniform acceleration? Centripetal acceleration is a uniform acceleration in uniform circular motion, yes or no? Question समझ गए? In a uniform circular motion, the particle is moving on a circle with uniform speed. Now my question is the acceleration acting on the particle a uniform acceleration, yes or no? Yes. What is the meaning of uniform acceleration? Govind, what is the meaning of uniform acceleration? Uniform means what? Constant. Constant. Constant acceleration, since it is a vector quantity, means magnitude as well as direction. Is it constant? Yes. यस सर। Magnitude one. हाँ. Particle is moving on a circle with uniform speed. Speed constant है, so V square by R is constant. क्योंकि speed same है और radius भी same है. It's moving on a same circle. But is the direction also constant? Acceleration की direction किधर होती है? Centripetal acceleration direction सेंटर की तरफ. ठीक है, तो जब ये पॉइंट ए पे सेंटर की तरफ, बी पे सेंटर की तरफ, सी पर है तो सेंटर की तरफ, डी पे है तो सेंटर की तरफ, तो इज इट ऑलवेज इन द सेम डायरेक्शन? नो. टुवर्ड सेंटर इज नॉट अ फिक्स डायरेक्शन ना. जब अगर हम इसको एक्स वाई एक्सिस के टर्म्स में लिखते हैं, इन टर्म्स ऑफ लेट्स से आई कैप जे कैप, एट पॉइंट ए इट इज प्लस आई कैप, at point B it is plus j cap, at point C it is minus I cap, at point D it is minus j cap. At every point it is changing the direction. So centripetal acceleration का केवल magnitude constant है, direction नहीं. So centripetal acceleration is
It is under a non-uniform acceleration. Only magnitude is constant. Magnitude of centripetal acceleration is constant. Right? Uniform circular motion is under a non-uniform acceleration because of change in direction of acceleration. Okay. In the case of non-uniform circular motion, the uniform circular motion में if I say what is the change in velocity, ऐसे कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस कर रहे हैं. Calculate change in velocity in this diagram. VB minus VA. Some questions from the NCERT level and SL Rhoda level. In this uniform circular motion, calculate VB minus VA. Change in velocity vector. So this can be understood only by numerical. Theory has not much importance. Much importance as in the terms of scoring in exam. Otherwise, you have to understand it. But yes, question clear. एक uniform circular motion पे particle move कर रहा है from A to B. You have to find VB minus VA. The magnitude of VB minus VA. Pen चलाओ. VB minus VA means we have to find the difference in these two vectors और उसके बाद उसका magnitude calculate करना है. Anyone from online? Done? कोशिश तो करो. पहले सरेंडर. VB minus VA. अभी एक तरीका तो बताया, अभी से कर लो. We can use this approach. What is the velocity at B in terms of ij cap? B किधर जा रहा है? ऊपर. Positive y. Positive y is j cap. So V times j cap. A पे velocity किधर है? A पे velocity किधर है? X की तरफ I cap. माइनस वी आई कैप का मैग्नीट्यूड निकालना है. कितना? √2v. मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज रूट ऑफ x कंपोनेंट स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट, दैट विल बी √2v. या फिर हम वेक्टर ट्रायंगल भी बना सकते थे. VA वेक्टर इज दिस, VB वेक्टर. किसी भी ट्रायंगल में जब हेड से हेड ज्वाइन करते हैं, दैट गिव्स द डिफरेंस. तो हमें कैलकुलेट करना है VB माइनस VA. A के हेड से B के वेक्टर को B के हेड को ज्वाइन कर देंगे. दिस विल बी वेक्टर VB माइनस VA बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि दोनों की लेंथ सेम है V एंड V. तो हाइपोटेनस लेंथ विल बिकम √2v. इन द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वी हैव टू यूज. ओके, तो मैंने शायद बोला होगा कि हम इसको एक दूसरे तरीके से भी एनालाइज करेंगे, बट ठीक है, अभी नहीं. मे बी इन वेक्टर्स अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के थोड़े थोड़े क्वेश्चन. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कुछ बच्चों वाले क्वेश्चन आते हैं. फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन कितना है? मतलब कैलकुलेट द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ. टाइम पीरियड तो बताइए. 24 आवर्स, 36,400 सेकेंड, 2 पाई बाई ओमेगा, दैट विल बी दी फॉर्मूला. हमने टाइम पीरियड का किया था 2 पाई बाई ओमेगा, सो ओमेगा इज 2 पाई बाई टाइम पीरियड. इस फॉर्मूले को यूज करके हम, सो अ पर्सन ऑफ 60 kg ऑन द अर्थ सरफेस, उसको कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है? विल फाइंड आउट ओमेगा. और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, बिकॉज ही इज ऑन द अर्थ, अर्थ इज रोटेटिंग, सो द पर्सन इज मूविंग ऑन अ सर्कल. और उस सर्कल पे, so person is on the equator, and the person on the equator, how much acceleration equator पे?
एक्सेलरेशन में मास का कोई काम नहीं होता है, राइट? यस, फोर्स में होता है, एक्सेलरेशन में तो नहीं होता। एक्सेलरेशन तो सभी का मास से डिपेंडेंट। ये जो पर्सन इक्वेटर पर है उसको कितना एक्सेलरेशन फील हो रहा है, रेडियस इज आर, रेडियस ऑफ अर्थ इज ऑल्सो नोन। मैं क्वेश्चन का सिर्फ पैटर्न बता रहा हूँ, अभी आपको सॉल्व नहीं करना है, डोंट वरी। दिस इज द रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर। अ पर्सन जो 60 kg का है वो अर्थ के सेंटर पे खड़ा हुआ है, उसको कितना एक्सेलरेशन मिल रहा है, कितना उसको फोर्स लग रहा है। So we'll calculate the angular velocity of Earth 2 pi by t. Capital T is 24 hours into minute into second. Calculate omega, और omega से हम calculate कर लेंगे r omega square, rotation angular speed. Non-uniform circular motion. Non-uniform circular motion की questions लिखते हैं, right? एक्सेल की क्वेश्चन तो आपको करने ही करने होमवर्क में, दैट इज फॉर होमवर्क। देखो क्वेश्चन, अ पार्टिकल मूव्स ऑन अ सर्कल such that a particle moves on a circle such that the path length covered in time t, the path length covered in time t is given as the path length given covered in time t is given as s is equal to 2t square. S is equal to 2t square on the circle of radius 2 meters. On the circle of radius 2 meters. Find the acceleration at time t is equal to 2 seconds. Also find the angle between velocity and acceleration at this instant. Angle between velocity and acceleration at this instant. So S से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं हम? This S is distance covered along the path, along the circle. ये सर्कल में मूव कर रहा है, सर्कल पाथ लेंथ। स्पीड निकालनी हो किसी इंस्टेंट पे, स्पीड इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पाथ लेंथ, स्पीड एट टाइम t, that will be ds by dt. डिफरेंशिएशन आता है थोड़ा भी बताओ, इसका क्या होता है डिफरेंशिएशन टी स्क्वायर का? थोड़ा वाला ये डिफरेंशिएट करो टी स्क्वायर को टी के रिस्पेक्ट में। तुम क्या बता रहे हो, फॉर्मूला क्या होता है? हाँ गुड, n x to the power n minus 1, ये पावर 2 है, 2 t to the power 2 minus 1। तो यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है हमें 2t स्क्वायर डी बाई डी टी ऑफ 2t स्क्वायर, 2 बार कॉमन, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, स्पीड एट टाइम t इज 4t। The speed of the particle at time t is 2t. स्पीड से हम कैलकुलेट कर लेंगे उसका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। At time t is equal to 2 seconds if you have to calculate the centripetal. ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? Is it a uniform or non uniform? कैसे पता? स्पीड चेंज होती जा रही है, स्पीड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अगर ये v is equal to 4 आता तो कांस्टेंट स्पीड, इट्स चेंजिंग विद टाइम, इंक्रीजिंग विद टाइम, सो इट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो हमें दो अलग अलग एक्सप्रेशन निकालने हैं, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल, फिर दोनों का रिजल्ट है। सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन का फॉर्मूला v स्क्वायर बाई आर, आर भी पता है, v भी पता है,
v is 4 times t, r is 2, 16 by 2 that is 8t square, टाइम t is equal to 2 सेकेंड पे निकालना है, तो एक्सेलरेशन आ गया 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट्स सेंटीमीटर एक्सेलरेशन। फ्रॉम द स्पीड, पाथ लेंथ को डिफरेंशिएट करके स्पीड से हमने कैलकुलेट कर लिया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन स्पीड चेंज करता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन डायरेक्शन चेंज करता है, so that is dv by dt, और v आया था 4 times t, so we differentiate this, d by dt of 4t which will be 4. Tangential acceleration and centripetal acceleration are perpendicular to each other, so the net resultant acceleration will be root of ac square plus at square. 32 square plus 4 square, and so non-uniform circular motion, we have to calculate both centripetal as well as tangential acceleration to calculate the overall acceleration. Yes. कितना? वो कुछ ही तो बताना है, कुछ तो मैं बता दूं 32 पॉइंट कितनी आएगा। What's the answer? Anyone? 32 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का रूट, इसको रूट 32 प्लस 4 नहीं लिख सकते, कुछ बच्चे स्क्वायर से लिख सकते, रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी। पहले स्क्वायर करेंगे स्क्वायर करके और फिर रूट लेना। स्क्वायर रूट निकालना आता है? स्क्वायर रूट पेयर बना के कुछ कुछ करते थे। हाँ, कोई नहीं। ओके, तो हाँ 32 पॉइंट भूल गए, इसलिए मैं बता देता हूँ, कोई बात नहीं। 32 स्क्वायर कितना है वैसे? तो ये तो कैलकुलेट कर लिया होगा, पूरा सॉल्व करके कितना आया? 1040, यही है 1040। अब जब हम रूट निकालते हैं, भूल गए होंगे, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली पूछा। ये क्या करते हैं हम? इट्स लाइक अ डिवीजन बट वी हैव टू यूज अदर। रूट निकालना कैसे करते हैं? कर दिया? कितना आया? अच्छा, हमें पेयर्स बनाने होते हैं, पेयर्स, तो एक पेयर ये, दूसरा पेयर ये हो गया इन द फॉर्म ऑफ पेयर। फिर यहाँ पे जैसे 1, तो यहाँ भी 1 लिखेंगे, 2 इंटू 2 स्क्वायर है इसलिए, तो हमें ऐसा नंबर लिखना है 3 इंटू 3, ये हो गया 9। सुन लो फिर लिख लेना, भूल गया इसलिए याद दिला रहे हैं, बचपन में पढ़ा था कभी। 3 इंटू 3 9, अगर 4 लोगे तो 4 इंटू 4 16 विल बी ग्रेटर नंबर। तो पहले ये 3 इंटू 3 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आ गया। फिर इसमें हम एक साथ पूरा पेयर लेते हैं नीचे, द होल पेयर विल बी यूज्ड। फिर क्या करते हैं? हाँ, तो जितने से डिवाइड किया होगा उसको हम फिर ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 3 6। अब जो हमें सेकंड प्लेस पे सेम नंबर लिखना है, तो इफ यू पुट 3, तो 3 इंटू 3 9, बट 3 इंटू 6 18 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 14, so we'll have to put 2, same digit दोनों जगह पे, and 2 into 2 4, और ये 2 into 6 12, ये आ गया 16। 2 लिखा था तो 2 को फिर से ऐड करेंगे, 6 4। अब उसके बाद हमें तीसरे प्लेस पे कुछ लिखना है, बट ये 64 है, दिस इज 16, तो वी हैव टू पुट डेसिमल। जब डेसिमल लगाते हैं तो हम एक साथ साथ पेयर ऑफ 0 काउंट करेंगे, पेयर ऑफ 0 इज यूज्ड, ऑलवेज इट इज इन पेयर। अब फिर से 3 टाइम्स करोगे तो 18 हो जाएगा, 3 into 6 18, so it has to be 2 only।
अगेन 2, सो 644 डेसिमल लगाई हुआ है, तो फिर से 2 0 एक साथ आते हैं इसमें ऑलवेज। और 5 टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा बिकॉज 5 4 20, so it will be 4 times 4 times। ठीक है, 2 places after decimal is fine। 32.24 32.24 मीटर पर सेकेंड। आएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। हाँ करेक्ट। सेकेंड पार्ट में बताना था व्हाट इज द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच का एंगल, सो दैट वाज tan थीटा इज इक्वल टू AC by AT। The angle between the acceleration and velocity, उसके लिए we will use these two component। acceleration का horizontal component है AT and vertical component is AC। tan theta is equal to AC upon AT। सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन था 32, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है 4, तो 8 थीटा इज tan इनवर्स 8, और इसको आप ऐसे ही छोड़ देंगे बिकॉज हमें इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। एंगल बिटवीन, बट दिस इज क्लियर, इट विल बी लेस देन 90। P by A कैसे निकालोगे वो? अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये ट्रायंगल तो है ही नहीं ना, ऐसा ट्रायंगल बना रहे हो कि V is base is, ऐसा कुछ कोई रिलेशन नहीं उसका आपस में। V से A का ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि V की लेंथ ही है। What you are saying is that V and AC resultant is A, वो नहीं है। ये कंफ्यूजन रखना कभी भी ऐसा। ये डायग्राम V और AT V से कोई कनेक्शन नहीं है। ये जो यहाँ पर ट्रायंगल बन रहा है, जो हम रेक्टेंगल बनाएंगे, दिस इज AT AC, और इसका पैरेललोग्राम मेथड से रिजल्ट आया A। यहाँ पर जो V लिखा हुआ था वो कुछ भी हो सकता है। V का एक्सेलरेशन से डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, V का रेट ऑफ चेंज है। ठीक है। ओके, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हमने एक आधे एग्जांपल कर लिए हैं, रेस्ट वी विल डू इन द वर्कशीट फ्रॉम द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल में भी आई थिंक इंक्लाइन प्लेन हमने कर लिया था, या शायद थोड़ा सा ही किया कर लिया था इंक्लाइन प्लेन का प्रोजेक्टाइल का रेंज एंड ऑल। ओके, द रेस्ट इज क्वेश्चंस हम करेंगे फ्रॉम द वर्कशीट ओनली इन द फ्राइडे क्लास। एज यूजुअल फ्राइडे की क्लास में we will be doing the questions, miscellaneous questions। अभी इसके कुछ कॉन्सेप्ट जो एक्स्ट्रा है वो कर लेते हैं, like radius of curvature, not for the school level, NCERT के लिए नहीं है, but yes, SL अरोड़ा में जो ये एक्सरसाइज है on page number 4.60, this is in homework on the circular motion 4.60 from the SL Arora। Those who do not have शेयर करना है मुझसे मांग लेना, आई विल शेयर दी फोटो। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ रहे हैं, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। सर्कुलर मोशन को यूज करके हम किसी भी रैंडम से पाथ का रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर सकते हैं। रेडियस ऑफ कर्वेचर है, रेडियस तो सर्कल के लिए होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज फॉर एनी रैंडम पाथ। दिस इज नॉट अ सर्कल, बट हर जगह पर कि हर एक पॉइंट पर हम छोटे छोटे सर्कल एज्यूम कर सकते हैं। तो लाइक फॉर हियर वी कंप्लीट द सर्कल, इस सर्कल का रेडियस दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहाँ पे इसको टच करते हुए सर्कल बना लो, दैट विल बी रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस पर्टिकुलर पॉइंट। एंड सिमिलरली एवरीवेयर इसका अलग अलग। सो दिस पाथ इज एक्चुअली अ कर्व्ड पाथ हैविंग द वेरिएबल रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हिच इज चेंजिंग फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। ए पे अलग है, बी पे अलग है, सी पे अलग है। तो इसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला भी होता है अगर हमें पाथ की इक्वेशन पता है तो, विच इज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इन द एडवांस लेवल। अभी मैं उसको नहीं टच करूंगा, हम फिजिक्स यूज करते हैं।
with the help of physics if you have to find, सपोज हमें ये पता है कि कोई कार या कोई भी बाइक या कोई भी पार्टिकल इस पे मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी इस टाइम पर v है, स्पीड पता है, we have to calculate the radius of curvature at these points. अगर ये किसी कर्व पे मूव कर्व्ड पाथ पे मूव कर रहा है, इट मींस इट इज आल्सो मूविंग ऑन अ सर्कल. एवरी कर्व्ड पाथ, इवन स्ट्रेट लाइन पाथ कैन आल्सो बी अज्यूम्ड एज सर्कल. तो सर्कल अज्यूम करेंगे तो सर्कल की रेडियस कितनी हुई? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट ऐसे अगर सर्कल बनाते जाओगे इट विल बी इनफाइनाइट रेडियस सर्कल. So straight line is also a circle of infinite radius of curvature. So every path can be assumed as a ओके. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करने का हम कुछ अल्टरनेट जुगाड़ निकाल लेते हैं. सपोज एट एनी पॉइंट इफ वी नो व्हाट इज द एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, अगर हमें ये पता पड़ जाए तो हम क्या करेंगे? दैट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फॉर्मूला इज v स्क्वायर बाई r. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज v स्क्वायर बाई r. ये एक्सेलरेशन हमने किसी और तरीके से कैलकुलेट कर लिया एंड वेलोसिटी हमें पता है या स्पीड हमें पता है, so we can calculate the radius of curvature as v square by ac. ac is the centripetal acceleration जो उस पॉइंट पर हमने सर्कल बनाया है उसके सेंटर की तरफ लगता है. that's the radius of curvature. Radius of curvature at any point is, so v is tangential speed at that point. जिस पॉइंट पर हमने सर्कल बनाया है वहां पे tangential speed, and ac is acceleration towards the center. Center of circle drawn at that point. नहीं, एक ही होगा टच करते हुए. हाँ, फिर इंटरसेक्ट कर जाएंगे. इसको टच करने वाला एक ही होगा जो टच करेगा एक पॉइंट पे. टेंजेंट एक ही होती है हर एक सर्कल पे. नहीं, ये सर्कल का छोटा सा पार्ट है, ये सर्कल का छोटा सा पार्ट है जिसपे वो अगर मूव कर रहा है. हाँ, पॉइंट नहीं है, सर्कल का पार्ट है ऑब्वियसली. तो फॉर एग्जांपल अगर हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं या किसी और तरीके से हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है, देन वी कैन अप्लाई v स्क्वायर बाई a. जैसे एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन. तो प्रोजेक्टाइल मोशन पे हम जब पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हैं, it is projected at speed u at an angle theta. Calculate its radius of curvature at the point of projection and at the highest point. ये क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन आते हैं बार बार. Find the radius of curvature of this path projectile at point of projection and at the maximum height.
बेटा समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, क्या बात हो रही है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए? हम किसी भी कर्व्ड पाथ को एक सर्कल से बना हुआ अज्यूम कर लेते हैं, स्मॉल स्मॉल सर्कल्स, एंड देन वी हैव, इफ वी हैव द एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, उस एक्सेलरेशन को यूज करके वी कैन डिराइव द फॉर्मूला, वी कैन फाइंड आउट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इन दिस पर्टिकुलर केस, जो ये हमने प्रोजेक्टाइल वाला केस लिया है, इसमें एक्सेलरेशन किधर होता है? व्हाट इज द एक्सेलरेशन एंड विच डायरेक्शन? प्रोजेक्टाइल मोशन इज मोशन अंडर ग्रेविटी, ग्रेविटी नीचे की तरफ लगती है, तो एक्सेलरेशन जो अभी इस पे है दैट इज वर्टिकली डाउनवर्ड एंड दैट एक्सेलरेशन इज जी। जिस पॉइंट पर हमें सर्कल का रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है, उसको ज्वाइन करते हुए, टच करते हुए हम एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, टचिंग दैट पॉइंट मतलब वो थोड़ा सा पार्ट उसका इंक्लूड करके, नॉट जस्ट वन पॉइंट। तो पॉइंट ए is the point of projection and point B is the maximum height. इस सर्कल का सेंटर यहाँ कहीं है, C। ऑब्वियसली सर्कल का सेंटर, हमें पॉइंट ए पे वो एक्सेलरेशन निकालना है जो सेंटर की तरफ है, और वर्टिकल वाला पता है, वर्टिकल एक्सेलरेशन इज जी, इट इज मूविंग अंडर ग्रेविटी, so acceleration vertically downward is g, we need to calculate the acceleration which is directed toward the center। समझ आ रहा है? किसी भी कर्व्ड पाथ को टच करते हुए सर्कल बना देते हैं, उस सर्कल पे टेंजेंशियल स्पीड चाहिए और सर्कल के सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन चाहिए। टेंजेंशियल स्पीड तो u है, एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर ऑफ दैट सर्कल, उसके लिए हमें यूज करना है कि थीटा, tangent is always perpendicular to radius, so 90 minus theta, this becomes theta again। थीटा 90 में माइनस करोगे 90 माइनस थीटा एंड इट इज थीटा। एक्सेलरेशन कंपोनेंट जी का जो लगेगा टुवर्ड द सेंटर, व्हाट इज दैट? जी वर्टिकली डाउनवर्ड था और जी का कंपोनेंट जो लगेगा टुवर्ड द सेंटर दैट इज जी cos theta। तो एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इस सर्कल को जो हमने बनाया है, the radius of curvature will be, tangential speed चाहिए थी, so the whole speed here is the tangential speed, that is u square, और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन चाहिए था, that acceleration came out to be g cos theta। सर्कल को एज्यूम करेंगे, उस सर्कल के सेंटर की तरफ का एक्सेलरेशन चाहिए और टेंजेंशियल स्पीड चाहिए टू फाइंड आउट द radius of curvature। At maximum height, what is the speed? Maximum height पे प्रोजेक्टाइल की स्पीड होती है u cos theta, vertical component becomes 0, so its tangential speed is u cos theta, और जो एक्सेलरेशन लग रहा था g, वो एक्चुअल में सेंटर की तरफ ही है, so whole g will be acting as a centripetal acceleration। Radius of projection, radius of curvature at max height, this will be u cos theta whole square divided by g। u square cos square theta divided by g, that is the radius of curvature at the maximum। किसी भी पॉइंट पर हम एक सर्कल बनाएंगे, उस सर्कल के सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, speed square divided by acceleration toward the center will be the radius of curvature। राइट, ओके। दोनों का रेशियो आया था एग्जाम में, तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ आर ए बाई आर बी? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू मैक्सिमम हाइट, दोनों के रेडियस का रेशियो इतना, यू स्क्वायर कट जाएगा, जी जी कट जाएगा, रेशियो इतना
व्हाट इज द रेशियो? cos cube सर 1 by cos cube. Yes, yes. सर ये जो सेंटर की तरफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो g sec थीटा नहीं होगा? g cos थीटा होगा, y sec थीटा. g is vertically downwards. हम इस तरफ कैलकुलेट कर रहे हैं किसी भी वेक्टर का कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में एंगल हो. g sec थीटा तो g से बड़ा हो गया ना. वन कंपोनेंट कैन नॉट बी ग्रेटर देन द वेक्टर. कंपोनेंट का मतलब क्या होता है? हम एक वेक्टर को दो ऐसे पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं जिसका रिजल्टेंट ये वेक्टर हो जाए. तो जो नहीं ना. यस समझ आ गया. गॉट इट. ये एक्चुअल में गड़बड़ Yes, क्यों sir. हो रहा है? ये जैसे अभी यहाँ पे मुझे डाउट पूछा था वो कुछ ऐसे गड़बड़ था. एक्चुअल में हम एज अ ट्रायंगल एनालाइज करने लग जाते हैं. ट्रायंगल का मतलब दिस इज द बेस लाइन, दिस इज द हाइपोटेनस. ऐसा कुछ आपने भी शायद अभी यही सोचा होगा. अगर हम ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर रहे हैं तो दिस लेंथ इज नॉट द सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन. और अब यही डाउट था शायद अभी ना. जब भी हम कोई वेक्टर बनाते हैं दिस, ये तो सिर्फ डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है. इसकी लेंथ जी इज 9.8, तो cos थीटा इज लेस देन 1. तो ये कभी भी हाइपोटेनस तो हो ही नहीं सकता इसका. दिस डायरेक्शन, दिस एरो इज ओनली फॉर द डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन. दिस इज नॉट रिप्रेजेंटिंग द लेंथ एज अ वेक्टर. राइट. अब एक्चुअल में हमें करना क्या था कि ये जो जी वेक्टर है इसको दो परपेंडिकुलर में हम ब्रेक कर रहे हैं, ये और इधर, ऐसा कि ये एक रेक्टेंगल बनाए. दैट इज दी एक्चुअल डायग्राम. वेक्टर जी को दो कंपोनेंट में डिवाइड करना है परपेंडिकुलर, ये सेंटर की तरफ. ये तो सेंटर तक मैंने ज्वाइन कर दिया ओवरऑल, बट इसके लिए जब कंपोनेंट डिवाइड करोगे इट शुड बी ओनली अलोंग द साइड ऑफ दिस रेक्टेंगल. अब इसमें देखोगे तो जी इज हाइपोटेनस और ये जो सेंटर की तरफ एक्सप्रेशन था सेंट्रीपिटल एक्सप्रेशन, ये हो गया बेस. तो दैट इज जी कॉस थीटा. इसी क्वेश्चन में थोड़ा और हायर लेवल पे इफ इट इज आस्क्ड व्हाट इज द टेंजेंशियल रिटार्डेशन, ये तो हमने क्या कैलकुलेट किया? सेंट्रीपिटल. व्हाट इज द टेंजेंशियल रिटार्डेशन ऑफ दिस सर्कल? दिस इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. स्पीड यू को अपोज कौन कर रहा है? जी का कौन सा कंपोनेंट? जी साइन. राइट. थोड़ा मतलब और कंसेप्चुअल. जी में दो कंपोनेंट, जी इज रिजल्टेंट ऑफ सेंट्रीपिटल एज वेल एज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन मींस अगर हम लिखते हैं डी ऑफ डी वी बाई डी टी, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. इसका मैग्नीट्यूड कितना हुआ? जी साइन थीटा. इससे भी क्वेश्चन है, वर्मा में भी एक दो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन है. राइट. तो हमने जी को डिवाइड किया दो पार्ट में. दो कंपोनेंट हमेशा वेक्टर से छोटे ही होंगे बिकॉज दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर के इक्वल होता है. तो ये जो अभी गलती आपने भी की थी यू कॉस थीटा समथिंग, ये इसीलिए बिकॉज शायद वेक्टर में थोड़ी क्लियरिटी कम है अभी. द डायग्राम जो हम ये एरो शो कर रहे हैं दिस इज ओनली फॉर द डायरेक्शन. वी हैव टू मेक अ पैरेललोग्राम. तो हमें ऐसा पैरेललोग्राम बनाना है जिसमें जी के दो कंपोनेंट हो, एक वी के अपोजिट और दूसरा वी के परपेंडिकुलर, so that if we complete the rectangle, the g vector should be the diagonal of that rectangle. Obviously छोटे होंगे, एक cos और एक sin है. cos theta and sin theta both are less than 1. So component कभी भी इस तरह किया ऐसे cos tech नहीं हो सकता. It will be either sin. Right? तो ये tangential retardation है. इस पे भी questions हैं books में. At any point, what is the rate of change of speed? This is tangential retardation of at point O. Because ये सर्कल है बट सर्कल में स्पीड चेंज हो रही है. इट्स नॉट मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड. यहाँ पे स्पीड u दी है, ये स्पीड विल बी चेंजिंग. सो इट इज अ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. नहीं, ऊपर से गया, ऊपर से गया. हाँ पूछो यार, डरो मत. उसे बताओ. नहीं, बता देगा. नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में दो एक्सप्रेशन होते हैं, एक सेंटर की तरफ, दूसरा टेंजेंशियल. दोनों का जो रिजल्टेंट है यहाँ पे दैट इज जी. जो सर्कल बनाया हमने दिस पॉइंट, एट दैट सर्कल द पार्टिकल इज नॉट मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड. स्पीड चेंज हो रही है. तो टेंजेंशियल एक्सप्रेशन भी होगा. टेंजेंशियल कौन सा होता है? जो स्पीड की या तो डायरेक्शन में एक्सप्रेशन है, अपोजिट है तो रिटार्डेशन. और जो सर्कल के सेंटर की तरफ होता है वो सेंट्रीपिटल.
सेंट्रीपिटल इज v cos थीटा, टेंजेंशियल इज v sin थीटा। v sin थीटा की वजह से उसकी स्पीड चेंज हो रही है, जो कि हर जगह पे चेंज वैल्यू बदलती जाएगी मतलब बिकॉज दैट एंगल इज चेंजिंग, the angle that the velocity is making with the horizontal will be changing, therefore tangential acceleration, centripetal acceleration as well as radius of curvature will also be changing। चलो अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं। थोड़ी देर के बाद सपोज ये सेम पार्टिकल है, फाइंड रेडियस ऑफ कर्वेचर व्हेन इट मेक्स एन एंगल अल्फा विद हॉरिजॉन्टल। ये ए था, दैट वाज बी, लेट्स से सी। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट सी। इसी क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट ले लेते हैं। कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट पॉइंट सी। सेम कहानी, सर्कल बनाएंगे वहां पे, ड्रॉ सर्कल, बट यहाँ पर हमें इस पॉइंट पे स्पीड भी नहीं पता है, दैट स्पीड इज ऑल्सो नॉट नोन, उसका भी कुछ करना पड़ेगा। दिस इज द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। स्पीड कैसे निकाल सकते हैं अर्नव दरियानी? अर्नव, how will we find the speed because the speed is not given? What should we do to calculate the speed? Arnav? Yes, sir. You understood the question? Yes, sir. Same particle when projected at t is equal to 0, कुछ टाइम के बाद जब उसका एंगल अल्फा हो गया तब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट करनी है, बट स्पीड इज ऑल्सो नॉट गिवन। How can we find the speed? Suppose that's the first question. What is the speed at point C? How do you calculate the speed at point C? Right. Okay, so we'll use that fact. At every point, horizontal component will be same. So u cos theta will be equal to v cos alpha. At every point of the projectile motion, the x component of velocity remains same. उससे हमें पहले स्पीड मिल जाएगी और फिर उस स्पीड को हम यूज कर लेंगे टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर। एक्सेलरेशन वर्टिकल में g है, टुवर्ड द सेंटर अल्फा 90 माइनस अल्फा अल्फा, दैट एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर इज g cos alpha again. So radius of curvature at point C will be velocity at point C square divided by acceleration, that is g cos alpha, and v will be u cos theta by cos alpha whole square divided by g cos alpha. इधर नीचे देखो, यहाँ की हमें स्पीड तो पता नहीं है, तो हमने क्या यूज किया लॉजिक, एक्स डायरेक्शन में हर एक पॉइंट पे कंपोनेंट सेम होता है, वाई डायरेक्शन वेलोसिटी चेंजेस बट एक्स डायरेक्शन वेलोसिटी रिमेन सेम, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे यू कॉस थीटा है, अगर यहाँ पे स्पीड v है देन इट विल बी v cos अल्फा, एक्स वेलोसिटी दोनों की इक्वल है, इक्वल कर दिया तो ये cos थीटा बाय cos अल्फा आ गया स्पीड एट पॉइंट सी, v स्क्वायर बाय r। ठीक है, तो बाकी आप क्वेश्चंस करेंगे इन द वर्कशीट नेक्स्ट क्लास। वी कैन नाउ स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर विच इज लॉज ऑफ मोशन, चैप्टर नंबर 3, जो आपने वैसे 9th में पढ़ रखा है, ये काफी कुछ आता होगा होपफुली। लॉज ऑफ मोशन, इसमें कोई डाउट तो पूछ सकते हो अभी भी, इफ देयर इज एनी पार्ट व्हिच नॉट क्लियर। रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालने का एक मैथमेटिकल तरीका भी होता है, अगर हमें इसका पाथ की इक्वेशन बताओ, जो कि हमें पता है, वी नो द इक्वेशन ऑफ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल y इज इक्वल टू x tan अल्फा माइनस g स्क्वायर, बट उसका एक बहुत ही लंबा चौड़ा फॉर्मूला है विच इज वेरी लेंथी, 1 + d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर होल स्क्वायर डिवाइड बाय dv। इसके लिए हमें डबल डिफरेंशिएशन करके और कुछ करना पड़ता है, जो आप शायद कोऑर्डिनेट में पढ़ोगे इन दी मैथ
at higher level. So हमारे पास एक शॉर्टकट दूसरा है, किसी भी सर्कल का अगर सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन पता है और उस सर्कल पे टेंजेंशियल वेलोसिटी पता है, देन वी हैव एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन से हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कैलकुलेट कर लेते हैं. लॉज ऑफ मोशन चैप्टर नंबर 5. तो अभी हम जो पढ़ रहे थे, द मोशन दैट वी डिड, मोशन इन प्लेन एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दैट वाज द पार्ट ऑफ काइनेमेटिक्स. काइनेमेटिक्स में वी डोंट बॉदर हाउ द मोशन वाज प्रोड्यूस्ड, व्हिच फोर्सेस हैव प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट वाज द मास. अगर एक छोटा सा 1 ग्राम का पार्टिकल 10 मीटर से मूव कर रहा है, 1000 kg का कोई ट्रक, it is same in terms of kinematics. Velocity same, displacement same, everything will be considered same. Practically that is not true. 1 ग्राम के छोटे पार्टिकल को मूव करने के लिए बहुत थोड़ा फोर्स चाहिए, बट 1000 kg के ट्रक को मूव करने के लिए huge amount of force is required. Correct? So when we talk about the motion from the beginning, we have to produce that motion. Then there is a very, very important role of mass to play. Correct? So in the kinetics, this is the laws of motion is called dynamics. Dynamics means equation of motion that governs. कौन सी forces लगाई है हमने, and based on those forces equation, we will predict what is the velocity, what is the acceleration. That's the part of dynamics. Okay, so force, कुछ बचपन की कुछ यादें. Force, क्या होती है definition force की? Anyone remember? A push or pull. बस complete the definition. 9th की बुक में अच्छा सा लिखा हुआ था कुछ, प्रीवियस बुक में ही. Push or pull, which dash you have to fill in the blank. Which brings about a change in motion of a body. Which brings the change in the motion of body or in state of rest, or Change in direction. or change in direction. Right. So force is a push or pull which tend to change the state of rest or motion of a body or change the direction. Right? Okay. तो ये तो हमने कुछ बचपन में पढ़ा था. अभी हमें इसको मैथमेटिकली समझना है. Force is push or pull which changes the state of rest or motion or direction. State of rest, state of motion, or changes the direction. Okay, this is the qualitative definition. Change the shape of an object. That was a balanced force. If there is only one force, in the single force, it cannot change the shape. It will be producing a motion. Okay. If there are two forces, they are balanced. That means there is no motion, but net force is 0, but still you can change the shape, like string can be stretched. Okay, sir. Got it? Okay. So force can cause the change. अच्छा आप शायद बुक से देख रहे होगे. हाँ ठीक है, तो बात है. Forces, ये 9 में भी पढ़ा था हमने. Force अगर एक single force लग रहा है किसी body पे, it will be producing any of these three effects. But if there are two forces, at least two forces, they cancel out. Net force is 0, so we will say that the resultant force is 0. But उन दोनों forces की वजह से shape change हो जाएगा. Rubber band gets stretched, spring gets stretched, but net force is still 0. So that is the effect that a force can produce. It can change it can produce the motion, it can generate the motion, it can change the direction, or it can change the shape of a body. Right? But shape of a body change होने के लिए हमें at least two forces चाहिए. Not only one single force can do it. एक force लगाओगे, जिस डायरेक्शन में force लग रहा है उस डायरेक्शन में motion
स्टार्ट हो जाएगा। जैसे स्प्रिंग का केस, इफ इट इज एन आइडियल स्प्रिंग, आप केवल एक तरफ से फोर्स लगाओगे तो क्या होगा? विल देयर बी एनी इलॉन्गेशन और कंप्रेशन? नो, इट विल जस्ट स्टार्ट मूविंग। या तो आप दोनों एंड पे फोर्स लगाओ, और यू हैव टू फिक्स वन एंड ऑन द अदर साइड। Either you exert force from both the sides, or one end has to be attached maybe to a wall or some other point, and then you exert force. तो सेकेंड और थर्ड वाले केस में इसका शेप चेंज होगा, लेंथ चेंज होगी। फर्स्ट वाले केस में इट विल बी जस्ट मूविंग, अगर आइडियल स्प्रिंग है तो। अगर आइडियल नहीं है तो थोड़ा बहुत एलोंगेशन हो जाएगा, वो भी हम देखेंगे बाद में कैसे उसको सॉल्व करते हैं, दिस टाइप ऑफ केसेस। But clear, you understood this doubt? Force can change the shape, absolutely right, but not a single force. At least two forces required. एक force जो हमने लगाया, दूसरा force वो जिसने cancel किया. But as a result, there is some internal restoring forces developed, which causes the deformation. Okay. So how does a body move? उसके लिए force चाहिए. Start करने के लिए तो चाहिए जनरेट करने के लिए। रखी हुई कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तब तो नहीं चलेगी। अगर हमें उसका स्टेट चेंज करना है, देन वी रिक्वायर फोर्स। या कोई बॉडी मोशन में, उसको रोकने के लिए हमें फोर्स चाहिए, या फिर डायरेक्शन चेंज करने के लिए फोर्स चाहिए। बट इनिशियली इट वाज नॉट वेरी क्लियर, सो देयर वाज सम फिलोसोफर कम साइंटिस्ट स्टार्टेड गिविंग द थॉट व्हाट एग्जैक्टली इज रिक्वायर्ड फॉर मोशन। अरिस्टोटल सुना है? सुना ही होगा, फिलोसोफर थे बहुत बड़े। एरिस्टोटल थोड़ा बहुत सुना, वेरी नाइस, ठीक है। पहले दो तरह के लोग होते थे, फिलोसोफर एंड नॉन फिलोसोफर। कोई साइंटिस्ट नहीं होता था, जो बैठ के सोचा करते थे राजाओं के दरबार में बैठ के, दे वर कॉल्ड फिलोसोफर। हिंदी में बोलते थे चिंतक। So they are supposed to be a learned man. So Aristotle is a philosopher, mathematician. मैथमेटिक्स में भी बहुत कुछ है, साइंस में भी बहुत कुछ है, फिजिक्स में भी बहुत कुछ है। तो पहले ऐसा डिमार्केशन नहीं था कि ये मैथमेटिशियन। जैसे न्यूटन के मैथ में बहुत सारी थ्योरम है, न्यूटन लेबनिज थ्योरम इन दी इंटीग्रेशन, तो ऐसे कुछ। अरिस्टोटल इज एक्चुअली ए फिलोसोफर, उनकी बहुत सारी फिलोसफी की बुक्स हैं। तो ही गेव अ थॉट कि अगर किसी बॉडी को हमें कॉन्टिन्यूअसली मोशन में रखना है, देन वी रिक्वायर अ कांस्टेंट फोर्स टू कीप दैट बॉडी इन मोशन। इट वाज अ थॉट, अगर किसी बॉडी को कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहना है, देन यू रिक्वायर अ कांस्टेंट पुश और अ कांस्टेंट फोर्स। सही है? सही है, वह नाइस में पढ़ चुके हो। गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था? गैलीलियो ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था कुछ, नाइन्थ में पढ़ा है इसलिए पूछ रहा हूँ। व्हाट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया? अगर कोई बॉडी मोशन कर रही है तो वो तब तक करती रहेगी सेम वेलोसिटी जब तक कि हम बाहर से फोर्स ना लगाएं। मतलब एक्चुअल लॉ इज एग्जैक्टली अपोजिट। अगर किसी बॉडी को कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहना है, देन वी डू नॉट रिक्वायर एनी अदर फोर्स। The body will continue to move with the same velocity or same state of motion unless or until compelled by an external force. अरिस्टोटल ने जो बोला वो एग्जैक्टली अपोजिट था, इसीलिए इसको अब हम बोलते हैं अरिस्टोटल की गलती। अरिस्टोटल fallacy that a body does not require a constant force। गलत हम भी पढ़ते क्यों है? क्योंकि ये उस टाइम के लिए बड़ी चीज थी, किसी ने सोच के बताया। That was the first thing। यहाँ बॉडीज चलती है, बट कैसे चलती है लोगों ने ध्यान नहीं दिया। Aristotle in law of motion, Aristotle proposed that a constant external force is necessary। लिख लो Aristotle fallacy डाल के, a constant external force is required to keep a body in motion। A constant external force is required। A constant external force is required to keep a body in continuous motion with uniform velocity। ईशान, इसमें एक वर्ड लिखा है एक्सटर्नल, उसका क्या मतलब है? With uniform velocity, what is the meaning of external?
Okay. So name any internal force. Give example of an internal force. इसमें लिक्विड फ्लो. ईशान, जो बाहर से लगता है वो एक्सटर्नल, जो अंदर से लगता है इंटरनल, वो तो इतनी इतनी हिंदी तो उनको भी आती है. कुछ एक्सप्लेन करो थोड़ा. आई एम नॉट आस्किंग फॉर द ट्रांसलेशन. What kind of forces are called external? What are internal? अच्छा, हाँ सही कह रहे हो, आगे बढ़ो. हाँ अच्छा, कुछ तो सही बोलना चाह रहे हो शायद. भावना है सही है. हाँ, एक्सटर्नल और इंटरनल में क्या डिफरेंस होता है, कोई बताएगा? एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन? इंटरनल एक्सटर्नल, एक्सटर्नल वर्ड का मतलब क्या है? सर कोई और बॉडी लगा रही है. कोई और बॉडी लगा रही है. कोई और ही लगाएगी यार, अपने आप तो हो ही नहीं सकता. फोर्स इज रिक्वायर्ड. यस यस यस, कोई कुछ बोलना चाह रहा है. ओके चलो मैं एग्जांपल देता हूँ, थोड़ा समझ में आएगा. ये कोई बॉक्स सर रखा है. टेंशन इंटरनल फोर्स है. ऐसे हम किसी भी फोर्स को ना इंटरनल एक्सटर्नल नहीं बोल सकते जब तक कि हमें सिस्टम नहीं पता है. थोड़ा क्लियर होगा, समझते हैं. ये कोई ब्लॉक है, अभी बोल रहे एक्सटर्नल, अभी हम सिर्फ इंटरनल एक्सटर्नल का मतलब समझने की कोशिश कर रहे हैं. बॉक्स रखा है, किसी ने आके इसको प्रेस किया. If that is not the part of system, the person who applied the force, that is not the part of system. System और particle ये सब actually first second chapter में discuss कर चुके हैं. What is particle? Which has mass but zero volume और a point mass. ठीक है. System क्या होता है? Part of universe जिसको हम study कर रहे हैं, under study. जब हम इस block को बोलेंगे system, then only block, no one else is in the picture. ये force लगाया block के ऊपर, this is the system. इसके लिए ये एक्सटर्नल फोर्स है. बाहर से लग रहा है मतलब ओनली वन फोर्स, ऐसा इकलौता फोर्स. अब अगर हम सिस्टम बना लेते हैं उस पर्सन को भी इंक्लूड करके, इसने लगाया है आगे, उतना ही फोर्स इसको भी चलेगा, विच इज न्यूटन थर्ड लॉ. बट इतना तो आता ही है. हम फोर्स लगाते हैं उतना ही फोर्स बॉडी पे भी अपोजिट डायरेक्शन में लगता है. नाउ व्हेन इन एनी सिस्टम फोर्स एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ पेयर, दैट इज कॉल्ड इंटरनल फोर्स. ये सेम फोर्स ही है. सिचुएशन क्या बदल गई? पहले हम सिर्फ ब्लॉक का सिस्टम दे रहे थे. नाउ द सिस्टम इज टेकन एज ब्लॉक प्लस द पर्सन हु अप्लाइड द फोर्स. इट बिकेम इंटरनल फोर्स ऑफ द सिस्टम बिकॉज इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ एक्शन रिएक्शन पेयर. करेक्ट. अब यहाँ पे स्पेसिफाई करना जरूरी क्यों एक्सटर्नल फोर्स? क्योंकि सपोज ये कोई स्पॉन्ज है या कुछ स्प्रिंग जैसा मटेरियल है, इसके अंदर भी कुछ फोर्सेस होंगे. जैसे परफेक्ट एग्जांपल इज अवर मस्कुलर फोर्सेस. हमारी मसल स्प्रिंग जैसी होती है, स्ट्रेच होती है, राइट? स्प्रिंग जैसी होती है एक्शन. अब अगर हम अपनी मस्कुलर फोर्स लगाएं, दैट्स इंटरनल फोर्स. दैट विल नॉट बी एबल टू डू एनी ऑफ दिस थिंग. ना तो आप रेस्ट से चलना स्टार्ट कर सकते हो बाय यूजिंग योर मस्कुलर फोर्स, और ना ही चलते चलते रुक सकते हो, और ना डायरेक्शन चेंज कर सकते हो. उसके लिए क्या चाहिए? ग्राउंड. ग्राउंड से फ्रिक्शन होगा, ओनली देन वी आर एबल टू मूव. इंटरनल फोर्सेस कभी भी मोशन प्रोड्यूस नहीं कर सकते बिकॉज दे कैंसल आउट. एक मसल ने दूसरी मसल पे लगाया एंड दैट इज गॉन, जीरो. ठीक है. तो ये जो वर्ड है टेक्निकली ईच एंड एवरी वर्ड, जब सब्जेक्ट एग्जाम होता है तो ये बहुत मैटर करते हैं. अभी अंडरस्टैंडिंग के लिए यू हैव टू बी क्लियर कि एक्सटर्नल और इंटरनल का डिफरेंस क्या है. ऐसा कोई फोर्स नहीं है कि ग्रेविटेशन इज एक्सटर्नल. जैसे ग्रेविटी की बात करते हैं, अगर हम ग्रेविटी ले रहे हैं, दिस इज सन एंड दिस इज अर्थ, केवल अर्थ को देखोगे तो अर्थ के ऊपर जो ग्रेविटी लग रही है वो उसके लिए एक्सटर्नल फोर्स है. If you consider Earth and Sun in the same system, then the same gravitational force will become internal force. ठीक है. तो कौन डिसाइड करता है? सिस्टम. What part of system is taken under consideration? Right? Okay. External force चाहिए, बाहर से कोई फोर्स चाहिए जो इस सिस्टम को मूव करेगा. ये अरिस्टोटल ने ऐसा सोचा. There was no experiment involved.
It was just a thought that a constant force is required if we want a body to be in continuous motion, but it was proven wrong by the experiment that Galileo performed. गैलीलियो और न्यूटन में क्या रिलेशन है, कुछ है? गैलीलियो के लॉ को न्यूटन ने अपना फर्स्ट लॉ बना लिया. ओके, ठीक है. और भी कुछ रिलेशन है, वो भी समझेंगे. गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया, गैलीलियो की एक्सपेरिमेंट देखते हैं. ये फॉल्सी है, ये समझ में आ गया क्यों? क्योंकि ये थॉट बेस्ड थी. गैलीलियो ने प्रूफ कर दिया बाय डूइंग सम एक्सपेरिमेंट. हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था द डिफरेंस बिटवीन लॉ, थ्योरी, प्रिंसिपल, एक्सियम, हाइपोथेसिस. दोबारा नहीं करेंगे, डोंट वरी, बोर हो जाएंगे, बहुत बार कर इन लोगों के साथ बहुत बार पढ़ चुके हैं ये. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लॉ एंड थ्योरी? हाँ, जो भी अपने दिमाग में आए वो. ये आप लोगों से नहीं है, केवल इन लोगों से क्वेश्चन है जिनके साथ फर्स्ट चैप्टर हमने नहीं किया. लॉ एंड थ्योरी क्या डिफरेंस है? सर थ्योरी के लिए कोई प्रूफ नहीं होता प्रैक्टिकल, और बेटा लॉ ये तब यहाँ होता है जब न्यू स्टूडेंट से ये क्वेश्चन है, आपसे नहीं. There are few new students sitting here, so the question is for them. Yes, Ishan. लॉ एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होता है, थ्योरी बकवास होती है. करेक्ट. थ्योरी प्रूव हो ही नहीं सकती, तभी वो थ्योरी है. अगर थ्योरी प्रूव हो जाएगी तो वो लॉ बन जाएगा. थ्योरी इज नॉट एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड. जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड होते हैं वो लॉ, और जो मैथमेटिकली वेरीफाइड होते हैं वो थ्योरम्स. राइट. जैसे बहुत सारे थ्योरम्स है, और जिनको वेरीफाई, जिनको प्रूव नहीं कर सकते वो प्रिंसिपल. सही है, बट प्रूव नहीं कर सकते. समझ गए? जैसे वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे नहीं, लॉ प्रूफ करते हैं. प्रूफ का मतलब हो गया जैसे न्यूटन ने दो बड़े बड़े मास लिए, एक रॉड में लगाया, घुमाया, फोर्स कैलकुलेट किया, बहुत सालों तक मेहनत की, फिर वो एक्चुअल फॉर्मूला निकल गया G m1m2/r². ये सपने में थोड़ी आया था. बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो साइंटिस्ट ने सपने में ही सोची. जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर, पता नहीं बेंजीन पढ़ा है, सुना है? सपने में देखा था, दिन भर रिसर्च किया था. हु गिव द बेंजीन स्ट्रक्चर? अच्छा भी नहीं पढ़ा होगा आपने शायद. केकुले को सपने आया था रात में कि एक बनाना है, उसके लिए 6 बंदर लड़ रहे हैं, दे आर मूविंग ऑन अ सर्कल. दिस वाज अ ड्रीम, रियली दिस वाज अ ड्रीम. तो असली में वही निकला. फिर बाद में उसने आइडिया मिला एंड ही प्रपोज द रेजोनेंस स्ट्रक्चर, और समझ गए? तो दैट इज अ थ्योरी, जिसको बाद में स्ट्रक्चर वेरीफाई हुआ, देन इट केम आउट टू बी करेक्ट. अब जैसे बहुत सारी थ्योरीज जो अभी चल रही है, पैरेलल यूनिवर्स थ्योरी, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, वो सब बकवास हो सकती है. देयर आर टोटल 12 यूनिवर्सेस. हमारे जैसा एक हमारा अपोजिट भी है, पैरेलल यूनिवर्स. हम यहाँ बोल रहे हैं, वो भी कुछ अपोजिट में हो रहा होगा, कुछ तेरे एग्जैक्टली अपोजिट रिएक्शन. वो बकवास है, दैट्स अ थ्योरी. वो टोटल नॉनसेंस. ये प्रूफ किया न्यूटन ने, एक्सपेरिमेंट किया, मास के प्रोडक्ट, मास बढ़ाया, चेक किया, डबल करो तो फोर्स डबल होता है, हाफ करो तो फोर्स हाफ होता है. दैट एक्सपेरिमेंटली प्रूवन रिजल्ट. ठीक है. मैथमेटिकली प्रूवन जो होते हैं वो थ्योरम्स. लॉज एक्सपेरिमेंट से प्रूव करते हैं. एक्सपेरिमेंट से बनाते हैं कि अगर कोई बॉडी, 2 बॉडीज m1 m2 r डिस्टेंस रखे तो उनमें फोर्स लगेगा. प्रिंसिपल इज समथिंग विच इज ट्रू, ऑलवेज ट्रू. प्रूफ करने की जरूरत भी नहीं है, या प्रूफ कर भी नहीं सकते, केवल उसको वेरीफाई कर सकते. ठीक है. तो अभी छोड़ता है. फर्स्ट चैप्टर आप लोग सेल्फ एक बार रिवाइज करेंगे, गैलीलियोज एक्सपेरिमेंट, और फिर उसके बेसिस पे गैलीलियोज लॉ. लॉ के लिए एक्सपेरिमेंट जरूरी है.
विदाउट एक्सपेरिमेंट इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव अ लॉ। उस लॉ को वेरीफाई करने के लिए हम भी वो एक्सपेरिमेंट दोबारा रिपीट कर सकते हैं। वी विल ऑल्सो गेट एग्जैक्टली सेम रिजल्ट जो कि न्यूटन को मिले थे। दैट इज द special fact or special thing in science that we can reproduce the same result, we can verify the same result, जो कि किसी और सब्जेक्ट में ऐसी फैसिलिटी नहीं है। समझ गए? ओके। गैलीलियो का एक्सपेरिमेंट क्या था? He used a very perfectly smooth surface. गैलीलियो ने कुछ एक्सपेरिमेंट किए विद सिंगल इंक्लाइन प्लेन एंड डबल इंक्लाइन। तो इफ इट इज ऑलमोस्ट अ परफेक्टली स्मूथ सरफेस, दोनों एक ही इंक्लिनेशन के, जिस हाइट से यहाँ पे बॉल छोड़ी ड्रॉप की, इट गोज डाउन एंड देन इट continues the motion for a very long period of time if it is a perfectly smooth surface, right? So फ्रिक्शन को अगर हम कम करते जाए तो ये काफी टाइम तक रहेगा। if because there is a friction it will be changing. Second, then he took one inclined plane and one horizontal plane. Now when the body is dropped, released, it will continue rolling again for a very long period of time. उसके लिए कोई constant force की जरूरत नहीं थी because of friction, which was obviously a very clear कि perfectly smooth surface नहीं है, it will be stopped but after a very long period of time. Second case में so and then he used a single slope मतलब like a single slope. When a ball is dropped, speed increases and oppositely speed decreases. But when a body is thrown at the horizontal surface, it will continue so it will stop after a certain period of time when it was projected on a horizontal surface. तो इससे सिर्फ इतना ये आइडिया मिला कि किसी भी बॉडी को जैसे इस पॉइंट से from point A to any point on this path, it does not require any external force for the motion to be completed, for the motion to continue. ये लॉ है क्योंकि इसके लिए एक्सपेरिमेंट किया गैलीलियो ने एंड गैलीलियो प्रपोज दिस लॉ, गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया। गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया क्या था? याद है? स्टेटमेंट ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया तो पढ़ा हुआ 9th में। इनर्शिया, प्लीज राइट। Inertia is an inherent property of matter. हाँ बेटा, Sir, inertia is an inherent property of matter. ये गैलीलियो वाली यही है। inertia is inherent property, that is property, but Galileo's law of inertia. Yeah. A body continues to move. In the same direction with same speed. In the same direction with the same speed. Along the same straight path if no external force is applied. The same straight line path when no external force is applied. अगर हमने बाहर से फोर्स नहीं लगाया तो वो जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में कंटिन्यूअसली सेम वेलोसिटी से मूव करती जाएगी। दिस वाज द लॉ गिवन बाय गैलीलियो। और गैलीलियो और न्यूटन में रिलेशन पूछा था मैंने, रिलेशन ये है दोनों में
द डे गैलीलियो वाज हैंग्ड, गैलीलियो को फांसी दी गई। क्यों? सर क्योंकि वो कंजर्वेटिव्स के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था, क्योंकि वो मतलब कैथलिक्स जो होते थे वो सोचते थे, मतलब उनके बड़े कंजर्वेटिव अप्रोच थी कि अर्थ फ्लैट है, सन अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है, वो उनके उनसे भिड़ रहा था। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, गुड गुड गुड, इधर से आंसर। गैलीलियो वाज हैंग्ड बिकॉज ही इन्वेंटेड ए टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप से देख के उसने बताया था कि अर्थ इज एक्चुअली रिवॉल्विंग अराउंड द सन। पहले ये बिलीव करते थे दैट अर्थ इज द सुप्रीम पावर, यूनिवर्स सेंटर, क्योंकि हम वहां पर हैं, हम मतलब ह्यूमन, दैट वाज द बिलीव ऑफ कैथोलिक चर्च, वी आर द सुपर पावर, वी क्रिएटेड एवरीथिंग एल्स। तो सारे स्टार्स एंड सब कुछ हमारे अंडर में है, एंड दे सीम टू बी रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। देखे तो ऐसे लगता है ना कि सन घूम रहा है, हम तो अपनी जगह पे। दैट वाज द बिलीफ। और गैलीलियो ने बोला कि नहीं ऐसा नहीं है, बिकॉज ही हैज इन्वेंटेड द टेलीस्कोप, और टेलीस्कोप से देख के बताया कि अर्थ इज नॉट द सेंटर, हम सन के चारों तरफ। एंड ही पब्लिश्ड द रिजल्ट ऑन द पेपर, for which, going against the church, he was hanged. And the day Galileo was hanged, the same day Newton was born. बस इतना रिलेशन है दोनों। तो ये न्यूटन के पैदा होने से पहले ही था। This law of inertia was given even before Newton was born. फिर न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन लॉ दिया, न्यूटन also proposed the same thing, Earth is revolving around the sun. फिर न्यूटन को क्यों नहीं हुई फांसी? Why he was saved? न्यूटन से पहले केपलर ने भी गैलीलियो के टेलीस्कोप के रिजल्ट यूज किए, एंड देन केपलर गेव द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। व्हाई ही वाज नॉट हैंग्ड? हिस्ट्री का क्वेश्चन है, वैसे भी फिजिक्स का नहीं है। सर तब तक क्वेश्चन मॉडर्नाइज हो गई थी। हाँ बेटा, क्या हो गया था तब तक? सर तब तक बिलीव्स मॉडर्नाइज होने लग गए थे। मॉडर्नाइज मीन? सर मतलब साइंस को ज्यादा एम्फसाइज करने लग गए थे लोग। बीच में फ्रेंच रेवोल्यूशन हो गई थी, एंड चर्च वाज नॉट इन द पावर एनी मोर। तो ऐसा नहीं था कि वो मॉडर्नाइज हो गए, उनकी चलती नहीं थी, तो इसलिए दे वर ओके। एनीवेज, जब एक्सपेरिमेंट किया, टेलीस्कोप में सबको पकड़ पकड़ के दिखाया, टाइको ब्राहे एंड केपलर ने, कि एक्चुअल में व्हाट गैलीलियो presented was actually the correct thing. इसलिए ठीक, okay, come back. Galileo's law of inertia. Why I gave this example? Because गैलीलियो की जो वर्क है वो न्यूटन से बहुत पहले के। गैलीलियो ने कुछ बॉडीज का मोशन जो अर्थ के आसपास होता है उसकी भी स्टडी की, और केपलर इज ऑल्सो मेनी इयर्स बिफोर न्यूटन गेव दी ग्रेविटेशन लॉ। तो न्यूटन के ग्रेविटेशन लॉ बनाने से बहुत पहले ही हमें ये पता था कि प्लैनेट कैसे मूव करते हैं और बॉडीज कैसे मूव करती हैं अर्थ के पास। वो एप्पल से स्टार्ट नहीं हुई सारी कहानी, उसके पहले भी था। न्यूटन का जो कंट्रीब्यूशन है वो क्या है? ही मेड इट यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब इट वाज सपोज टू बी टू डिफरेंट फोर्सेस। एक फोर्स जो प्लैनेट और सन के बीच में लग रहा है वो कुछ अलग ही है, और जिस फोर्स की वजह से एप्पल गिरा नीचे वो अलग है। देयर दीज वर सपोजली टू इंटायरली डिफरेंट वर्ल्ड। जो फोर्स अर्थ और सन के बीच में लग रहा है वही फोर्स एप्पल और अर्थ के बीच में लग रहा है। दिस वाज नॉट नोन। गैलीलियो ने अलग इसके लिए लॉज बनाए थे। प्लैनेटरी मोशन, अर्थ के आसपास के मोशन के लिए ही गिव द लॉ ऑफ इनर्शिया, एंड द केपलर एंड ब्राहे दे गिव द लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। न्यूटन मेड इट यूनिवर्सल। न्यूटन के लॉ को बोलते हैं हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। चाहे वो दो चींटी हो, चाहे वो दो हाथी हो, चाहे दो स्टार हो, चाहे दो गैलेक्सीज हो, उनके बीच में जो फोर्स लग रहा है that is the same type of force given by the Newton's law of gravitation. Correct? Galileo's law of inertia कर लिया आपने। नेक्स्ट डालना inertia। अब inertia को हम थोड़ा समझते हैं in the mathematical term। inertia का मतलब क्या है? resistance to change। पढ़े हुए तो पढ़े हुए। रेजिस्टेंस का मतलब कैसे, जो जितना हैवी, जितना ज्यादा मास, उतनी दिक्कत होगी उसको अपना हाथ उठा के फिर मूव करने में, समथिंग लाइक दैट। तो सेम लॉजिक इनर्शिया के साथ है। इनर्शिया जिस बॉडी का जितना ज्यादा मास है
उसमें उतना ज्यादा इनर्शिया. इनर्शिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास. greater inertia, more force is required to do any kind of change. अगर रेस्ट में है तो मूव करने के लिए, हिलाने के लिए फोर्स ज्यादा लगेगा. अगर वो ज्यादा हैवी बॉडी इन मोशन तो उसको स्टॉप करने के लिए ज्यादा. एंड लाइकवाइज टू चेंज. So Newton classified that inertia into three categories, three types. Inertia of rest. अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेंगे, अपने आप चल नहीं सकते, बाहर से फोर्स चाहिए. That's inertia of rest. If a body is in motion, तो वो मोशन में चलती रहेगी, वो अपने आप रुक नहीं सकती. That's inertia of motion. If a body is moving in certain direction, वो अपने आप अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती जब तक कि बाहर से फोर्स नहीं है. So there are three types of inertia: inertia of rest, inertia of motion, inertia of डायरेक्शन. डिफाइन कैसे करेंगे इनर्शिया को? इनर्शिया इज अ क्वालिटेटिव टर्म. मतलब इनर्शिया की कोई हम वैल्यू नहीं करते. इनर्शिया इतना है, 50 ग्राम, 100 ग्राम. इनर्शिया इज डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच मास इज देयर, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली मास. दैट इज related to mass. More mass, more will be the inertia. Inertia is the property, inherent property that. लिख लो inertia की definition. It is inherent property which opposes the change in a state of rest/motion and direction. Inherent property which opposes the change in a state of rest/motion and direction. It is directly proportional to mass. It is directly proportional to mass. It is of three types. Inertia of rest. डेफिनेशन अंडरस्टूड है. उसी डेफिनेशन में सिर्फ रेस्ट, सबको हटा के रेस्ट कर देना है. अ बॉडी रेजिस्टेंस टू चेंज. अ बॉडी एट रेस्ट कैन नॉट मूव ऑन इट्स ओन. अपने आप चल नहीं सकती, अपने आप रुक नहीं सकती, और अपने आप अपना डायरेक्शन चेंज नहीं कर सकती. तो दीज आर दी थ्री टाइप ऑफ इनर्शिया. तीनों मास पे डिपेंड करते हैं. देयर विल बी अनदर टर्म व्हिच इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो हम पढ़ेंगे रोटेशन चैप्टर. Similar to inertia, right? So इसकी definition तो ठीक है, definition तो understood है. Example लेते हैं. inertia of rest का मतलब any example of inertia of rest. पेड़ के ब्रांच को अगर पकड़ के हिलाते हैं, इसमें मैंगो या कोई फ्रूट लगे हुए तो टूट जाते हैं. क्यों? बिकॉज वो रेस्ट पे थे पहले से, आपने उसको शेक किया ब्रांच को, देन ऊपर जो उसकी कनेक्टिंग छोटी सी जो हल्की सी वो थी पार्ट, दैट विल बी ब्रोकन. ठीक है. या किसी बहुत पुराने ब्लैंकेट को या कारपेट को साफ करने के लिए क्या करते हैं? डंडे से पीटते हैं. तो जो डस्ट है अपनी जगह रहती है, कारपेट आगे मूव कर जाता है. दैट इज अगेन बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट. या किसी भी बस में अगर हम सडनली बस को एक्सलेट कर लेते हैं तो हमारी अपर पार्ट ऑफ द बॉडी गोज बैकवर्ड. क्यों? वो अपनी जगह पे जो नीचे बस के फ्लोर के साथ जो ग्राउंड हमारा पैर जो अटैच है वो आगे मूव कर गया. द अपर पार्ट ऑफ बॉडी इज आगे. When car accelerates or bus accelerates, the lower part of the body starts moving, but the upper part of the body is still the same position due to the inertia. वो अपनी जगह पे और नीचे का आगे चला गया, then we feel backward. Opposite is inertia of motion and inertia of direction. ठीक है. So next class Friday पहले हम करेंगे question projectile के और circular motion के from the worksheet that I will send in the group. And नेक्स्ट सैटरडे आई थिंक देयर इज अ टेस्ट. ग्रुप में इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी. आप लोग ग्रुप का पार्ट नहीं हो तो आप सृष्टि मैम को एक बार हेलो कर देना. शी विल ऐड यू इन द ग्रुप. एवरी वीकेंड देयर इज सपोज टू बी अ टेस्ट. लास्ट वीकेंड नहीं हुआ था ड्यू टू दी रक्षाबंधन एंड फेस्टिवल्स. तो दिस सैटरडे विल बी टेस्ट. आप एक बार सृष्टि मैम से डिटेल ले लेना. शी विल ऐड यू इन द ग्रुप. सृष्टि मैम जो बाहर बैठ मैम आपको बता देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे. ठीक है. ओके देन, थैंक यू, बाय बाय.